Hello, dear students. Welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 2, which is about linear equations in one variable. यानी कि हम छोटी अपनी क्लासेस में सिंपल इक्वेशंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से हम किस तरह की इक्वेशंस बना सकते हैं और उन्हें सॉल्व कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से. Yuvansh and Kavya are playing with numbers. Yuvansh tells Kavya, I think of a number. If I double it and take 6 away, I got 40. Can you tell me the number that I thought of? So, Kavya thinks for a while and tells the answer. Can you tell the answer? Let us see how Kavya told the answer. Let the number be x. By doubling it, we get 2x. Okay, and we take 6 away from it. So your equation will be 2x minus 6. And while you're taking 6 away from this, so you will get your answer, that is 40. So 2x minus 6 is equal to 40. आप यहाँ पर 6 अपने सिंपल इक्वेशंस ऑलरेडी पता है, साइड चेंज करेंगे. We are moving from left hand side towards the right hand side. So this minus will be become the positive 6. So 40 plus 6. तो ये आंसर आपका 46 आया. यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और x की वैल्यू आ जाएगी 23. यानी कि 23 का डबल करें, फिर उसमें से 6 को माइनस कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 40. सो take the final result, add 6 to it and then half the result. So we learn it in earlier classes that 2x minus x is equal to 40 is an example of an equation. By solving this equation in the above method, Kavya was able to find the number that Yuvansh thought of. So let us briefly revise what we know about equation. An algebraic expression is equality of algebraic expressions involving variables and constant. यानी कि हमारी जो algebraic expressions होती है उसमें variables होते हैं और constant होते हैं. वेरिएबल का मतलब होता है अल्फाबेट्स और कांस्टेंट का मतलब होता है आपके नंबर्स 1 2 3 4 ये सब कुछ. जब आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपके पास इक्वल टू का साइन आ जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपकी इक्वेशन में. नाउ इट इज एन इक्वालिटी साइन इक्वल. द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वालिटी साइन इट्स कॉल्ड द एलएचएस. यानी कि जो आपके उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ होगा दैट इज ये है, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ होगा लेफ्ट हैंड साइड, और जो आपके राइट हैंड की तरफ होगा दैट इज योर राइट हैंड साइड. तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे. द एक्सप्रेशन ऑन द राइट ऑफ द equality sign, it's called RHS, and RHS of the equation. In an equation, the values of LHS and RHS are equal. This happens to be truly only for certain value of the variables. This value is called the solution of the equation. यानी कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, ये आपका क्या है, जब इसे फर्दर हम इक्वेट करते हैं तो हमें मिल जाता है हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन. नाउ लीनियर इक्वेशन. Consider the following equation. 2x minus 6 is equal to 40, 2x plus 2y is equal to 48, 4x minus 1 is equal to 2x plus 5. Degree of each equation 1, 2 and 3 is 1. So they are called linear equations. While degree of equation 4 it's not 1. यहाँ पे देखिए आप क्या है, 2 है, x square है, तो ये आपकी linear equation नहीं है. So it is not a linear equation. So equation 1, 2 and 3 are examples of linear equations. Since the degree of the fourth equation is not 1, it is not a linear equation. Solving equation having the variable on both sides. तो हम किस तरीके से इन्हें solve कर सकते हैं? So consider the equation. Consider the following equations. 2x minus 7 is equal to 35. तो आपको पता है आप 7 को उधर लेके चले जाओगे, 35 में प्लस करोगे और जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दोगे. We have just learned that these are examples of linear equation. Observe the number of variables in each equation. यहाँ पर आपका 1 वेरिएबल है और यहाँ पर आपका 2 वेरिएबल है. तो जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ जाए तो हम उन्हें किस तरीके से, so 1 and 2 are examples of linear equation. Sorry, x and x, so 1 variable, but the equation has 2 variables x and y in third equation. So this is called linear equation in 2 variables. जब हम बात करें linear equations 1 variable तो हमारे पास एक ही वेरिएबल होगा x, x चाहे वो कितनी टाइम्स रिपीट हो. बट जब हम बात करें linear equation in 2 variables तो इसका मतलब है कि x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, a भी हो सकता है. So thus an equation of the form of ax plus b is equal to 0 or ax is equal to b, where a and b are constant and a is never equal to 0, it's called linear equation in one variable, or we also called it simple equations. We know that an equation is the quality of the values of two expressions. In the equation 2x minus 4 is equal to 8. The two expressions are 2x minus 4 and 8. In most examples that we come across so far, the RH is just a number, but this need to not always be so. Both sides could have expressions with variables.
For example, the equation 2x minus 4 is equal to x plus 2 has expression with the variables on both the sides. This expression on LHS 2x minus 4 and RHS x plus 2. तो अब इन इक्वेशंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए ये डिस्कस करते हैं. 2x minus 4 and x plus 4. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल्स को एक साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो RHS की साइड आप पुट करेंगे और कांस्टेंट को एक साइड, दोनों को सेपरेट कर दीजिए. तो यहाँ पर हमने क्या करा कि आपका 2x minus 4 है तो 2x यहाँ पर आपने माइनस होगा ये, या फिर ऐसा कर लीजिए 2x इज इक्वल टू, तो -4 कहाँ चला गया, यहाँ 4 के पास चला गया. 2 plus 4 कितना होगा, 2 plus 4 आपका हो जाएगा 6. अब ये जो x है ये 2x में से माइनस होगा क्योंकि ये प्लस है. अगर हम RHS से LHS की तरफ जाते हैं तो हमारा जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है. हमने पढ़ा था इतनी छोटी क्लासेस में कि अगर हमें अपनी साइड को छोड़कर किसी और के घर जाना पड़ रहा है तो हमें उसके रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा. तो अगर हम पॉजिटिव है तो हम उस साइड जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे. सो 2x minus x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 6. तो इस तरीके से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज 2.1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो आप इन्हें देखिए, यहाँ पर ही कर देते हैं. 9y, तो यहाँ पे 9y है, वेरिएबल्स को पहले एक साइड और कॉन्स्टेंट्स को एक साथ कर दीजिए. 15y, तो आप यहाँ पे कर लेंगे -15y. माइनस क्यों आया, क्योंकि ये प्लस था. इज इक्वल टू -1, और ये जो आपका 5 है ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -5. 9, आप 15 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 6y. माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -6. y की वैल्यू क्या आएगी, 6 डिवाइडेड बाय 6, -6 डिवाइडेड बाय 6, तो योर आंसर विल बी -1. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यहाँ पर आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जो ब्रैकेट के बाहर आपका नंबर होगा वो आपके ब्रैकेट के अंदर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पे 3t minus 9 is equal to 5 multiplied by 2t is 10t and 5 multiplied by 1 is -5. अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप 3t में से माइनस, क्योंकि 10t इधर आएगा ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, -10t कर देते हैं और -5 में, यानी कि आप उसे प्लस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, तो ये आपका आ जाएगा -7t इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 4, क्योंकि 9 में से 5 जाएंगे तो 4, और आंसर उसका आता है, साइन उसका आता है जो कि बड़ा नंबर, तो 9 बड़ा है जो कि प्लस है. ये आपका यहाँ पर होगा 4 डिवाइडेड बाय -7, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा. तो इस तरीके से आप बाकी के दो क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ पर और क्वेश्चन देख लेते हैं. एक क्वेश्चन देखते हैं 11. अब यहाँ पर आप देखिए 3 5 जा 15z माइनस 3 7 जा 21 प्लस 2 9 जा 18z माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32z 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28 माइनस 111. अब यहाँ पर आप 15z और 18z को पहले, और ये 32z जो कि इक्वल टू का साइन है, इन्हें साइड कर दीजिए. 15z प्लस 18z, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका राइट हैंड साइड पर है, तो 32z लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. इस तरीके से पहले आप इसे सॉल्व कीजिए. 15 प्लस 18 20 30 एंड 3, तो 33 हो जाएगा. 33z माइनस 32z, आपका आंसर आएगा z ओनली. ओके, उसके बाद आप इन नंबर्स को भी साइड लेके जाएंगे क्योंकि तो हो गया आपका z. ठीक है, अब जब आपके पास यहाँ पे z आ रहा है तो ये आपका -28 माइनस 111 माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 43 आपका आंसर आएगा. अब ये -43 कन्वर्ट हो जाएगा +43 में. ओके, अब आप इसे सॉल्व कीजिए कि माइनस माइनस अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 29 39 माइनस 139 प्लस 43. 9 में से 9 में से 3 जाएंगे आपके तो बचेगा 6. 13 में से आप अगर 4 माइनस करेंगे तो 96, माइनस 96 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा. थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हुई है बट आपके आंसर्स आ जाएंगे. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पर आप 7z में से पहले वेरिएबल्स को साइड कर दीजिए, तो इधर आएगा 2z तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव है. 4, अब 13 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7z माइनस 2z
आपका आंसर आएगा 5z। तब आप 13 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9। तो z की पावर जो आएगी ये -9, वैल्यू जो आएगी वो -9/5 आपकी आ जाएगी। इस तरीके से आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। नाउ 2.3 reducing equations to simple form. Reducing equations is a method of rewriting the equation in a simpler form. Certain equations in mathematics are not in the form of linear equations, but they can be put in the form of linear equations by performing some mathematical operations on them. After reduction of these equations in linear form, they can be solved and the value of unknown can be calculated easily. Steps for reducing equations to simpler form. If the given equation is in non-linear form, so it cannot be directly solved. Therefore, first we will need to simplify the given equation by using the cross multiplication techniques. Cross multiply both sides of the equations. The denominator on one side is multiplied to the numerator on the other side. Use the distributive law to open the brackets. Bring all the variables on one side, LHS and constants on other side of the equation. So what you have to do here, students, that you have to just multiply the denominators with the numerator of the other rational number. So यहाँ पर आप सबसे पहले क्या काम करेंगे कि आप वेरिएबल्स को एक साइड और जो आपकी कांस्टेंट है उन्हें अलग कीजिए. So when you solve it, here we have for example 2, 5, 10. आप इसे सॉल्व करेंगे. So you will wait. आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं. ये यहाँ पे देख लेते हैं. टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स 2, 3, 4 एंड 5 विच इज 60. तो हमने क्या करा, इन तीनों का लिया हमने एलसीएम विच इज 60. मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 60. अब दोनों साइड को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से. तो आपका जो आंसर आएगा, अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, तो ये 36, 30x माइनस 12 इज इक्वल टू 20x प्लस 15. अगर 30 में से आप 20 को माइनस कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, 10x. अब यहाँ पर 15 है, ये उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस. तो 15 प्लस 12 प्लस 60, तो 10x इज इक्वल टू 87. तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8.7. तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 16. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. सो x 7x को आप मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 7 से, और 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस 16 से. 7 मल्टीप्लाई बाय 7. सो यहाँ पर वेट, ये 7 है, यहाँ पे x नहीं है. तो 7 को आप मल्टीप्लाई करोगे x से तो आपका आंसर आ जाएगा 7x. 7 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो 49 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3x 12x, 4 मल्टीप्लाई बाय 16 64. अब यहाँ पर ये 7x है तो हम क्या करेंगे, हम 12x को इधर लेके आएंगे टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. तो ये आपका प्लस से हो जाएगा माइनस, और प्लस 49 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 49. 7x में से 12x के दैट इज माइनस 5x, और 64 में से आप 49 माइनस करते हो तो आएगा आंसर 15. अब यहाँ पर ये जो है आपको डिवाइड करना है क्योंकि हो रहा है मल्टीप्लाई. 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -3. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर एक्सरसाइज 2.2. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो हमें ये सॉल्व करनी है. आप यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, पहले आपको प्रोसीड करना पड़ेगा. एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए. आप पहले इन्हें सॉल्व कर लीजिए क्योंकि प्लस का साइन है. तो अगर आप सॉल्व करते हैं 5 7 जा 35, 5 के टेबल में 35 आएगा, 7 पर मल्टीप्लाई बाय n 7n. फिर 7 के टेबल में 35 आएगा 5 टाइम्स पर, तो 5 5 जा 25. ये हो गया. अब आप इज इक्वल टू 2/3 रखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो यहाँ पे कर लेते हैं 3 7n प्लस 25 is equal to 2 multiplied by 35 that is equal to 70. 3 multiplied by 7 तो 20n. 3 multiplied by 25 that is equal to 75 is equal to 70. So 21n को आप 70, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -75. आंसर यहाँ पे आएगा 5. यहाँ पे 21n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड. तो 5/21 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि आप 35 इनका एलसीएम लेते और फिर यहाँ पे भी 35 से मल्टीप्लाई करते और इस तरफ भी 35 से मल्टीप्लाई करते, बट दोनों केसेस में आपका आंसर जो आता वो यही आता बच्चों. नाउ ये हमारे पास है 7. इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 2 4 3 2 का, या फिर आप ऐसा कीजिए x/2 माइनस x/3.
क्योंकि आपका राइट हैंड साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो माइनस हो जाएगा। 1/2 माइनस है तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब आप इन दोनों के एलसीएम लीजिए तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 6, तो ये हो गया आपका 3x माइनस 2x, ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर 2 प्लस 1। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो 3x माइनस 2x, तो आपकी वैल्यू आएगी x/6 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3/4। अब ये 6 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो x इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पर आंसर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, 3 3 जा 9, 9/2 आपका आंसर आ जाएगा, 4.5 समथिंग आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप माइनस करोगे, ठीक है, इसमें इसे अपने लिए हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3t प्लस 1/16 माइनस, पर वो उसका भी कोई ऐसा एज सच कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। या फिर आप चारों का एलसीएम लीजिए और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं, बट हम सिंप्लीफाई करके चलते हैं। आप 16 मल्टीप्लाई बाय 7 कीजिए, 7 6 112। अब 16 के टेबल में 112 आता है 7 टाइम्स में, तो आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3t प्लस 1 को, माइनस 7 के टेबल में आएगा 16 टाइम्स में, तो यहाँ पर आएगा 2t माइनस 3। इसे सॉल्व कीजिए, ये आपकी बनेगी पहली इक्वेशन। ठीक है, फिर आप यहाँ पे 14 और 8 का बोलेंगे एलसीएम, सो 2 7 4 2 2 7 2 1 एंड 7, 2 2 4 4 2 8 8 7, तो 8 7 आपका आएगा 56। और यहाँ पर अब 8 के टेबल में 8 7 सो t प्लस 3 प्लस, और यहाँ पर 14 के टेबल में आएगा 4 पे 4 4 16। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आपकी इक्वेशंस आ जाएंगी। 21t प्लस 1 माइनस 32t माइनस, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो छोड़ो, माइनस 16 है तो प्लस हो जाएगा, 16 3 48। तो 21t और 32t ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पे 3 में से 2 माइनस करोगे तो आएगा 1, तो 11t ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 49 अपॉन 112। इसे यहाँ पे रखिए और अब इसे सॉल्व करते हैं। 70 7 3 21 प्लस 4 3 12t माइनस 4 56। 70 12t आपका आंसर आएगा 19t। 21 में से 4 माइनस करेंगे तो 20 में से 4 गया, 16 प्लस 1 15 17 21। ओके, और ये आएगा आपका प्लस में अपॉन 56। अब यहाँ पर आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गए, आपको पता है क्या करना है, आगे के बच्चे स्टेप्स आप खुद करोगे। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन पुट कर देनी है 11t प्लस 49 अपॉन 112, तो ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आपका आंसर इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ वी हैव सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो ये हम सॉल्व करते हैं, सेम ही तरीके से करनी है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 15z माइनस 21 माइनस 9 2 18z माइनस माइनस होगा प्लस 22 इज इक्वल टू 4 8 32z
-4, 13 4 जा 52, देन -17। अब यहाँ पर आप 15z और 18z को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3z। 3z में से -32 होगा। z इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका 1 हुआ जो कि प्लस में है, यहाँ पर वो चला जाएगा, तो यहाँ पर आप माइनस माइनस प्लस करोगे तो 59, 69 माइनस में, और ये क्या है प्लस में, तो ये भी जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 70 और यहाँ पर आ जाएगा 35 -35, ये भी माइनस में, माइनस माइनस कट, तो आपका z की वैल्यू आ जाएगी 70/35, दैट इज इक्वल टू 2। इस तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। थोड़ा सा ध्यान से हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए आपको सॉल्व करना है और धीरे धीरे आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। ये था बच्चों आपके इस चैप्टर का एंड। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।